Welcome back, my dear students. How are you all? Hope so be fine. I am Jatin Dani. Today we are going to start with the next colligative property, that is your osmotic pressure. This is the fourth colligative property that we are going to discuss. Before that हमने इससे पहले four और colligative properties को discuss किया. कौन-कौन सी? सबसे पहले था that is relative lowering in vapor pressure. The second one is elevation and the boiling point. The third one that we have discussed in the previous video, that is depression and freezing point. And this is your fourth colligative property, that is osmotic pressure. Now for the osmotic pressure, you have already know about the osmotic pressure, that it depends upon osmosis. If you want to learn the osmotic pressure, then two terms must be clear to you. One is your osmosis and diffusion. That what is diffusion and what is osmosis. Diffusion क्या है हमारे पास, osmosis क्या होगा, तब आपको osmotic pressure जो होगा वो easily क्या हो जाएगा, clear हो जाएगा. That what is osmotic pressure. So firstly we will start with the first factor, that is diffusion. What is the meaning of diffusion? Diffusion क्या meaning है? Diffusion simply defined the movement of substance from higher concentration to lower concentration. जब भी आपके पास जो आपका सब्सटेंस होगा, जब भी वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, डिफ्यूजन बोल देते हैं. इसको थोड़ा समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बीकर कंसीडर करो. लेट अस से वी हैव अ बीकर हियर. बीकर की हेल्प से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा डिफ्यूजन क्या चीज है. तो यहाँ पे हमने एक बीकर कंसीडर कर दिया. यहाँ पे हमारे पास इस बीकर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है. दिस इज मेम्ब्रेन and this membrane will going to divide the two solutions. Here we have a solution 1 and here we have solution 2. Solution 2, solution 1. Now I said that solution 1 will have more concentration as compared to solution 2. Solution 1 है, उसकी concentration ज़्यादा है as compared to solution 2. यहाँ पे हम concentration C1, इसको C2 ले लेते हैं. इसकी concentration ज़्यादा है, इसकी concentration क्या है हमारे पास, कम concentration है. तो concentration ज़्यादा और कम होने का meaning क्या है, that it has more solute particles. It has more solute particles and it has less solute particles. इसके पास जो solute particles है less है, इसके पास जो solute particles ज़्यादा है. That means यहाँ पे जो है हमारे पास solute particles की higher concentration, यहाँ पे solute particles की lower concentration. अब हम यहाँ पे diffusion process को कैसे start कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि diffusion process start होगा. पहले इसके लिए हमें definition को अच्छे से समझना पड़ेगा. If definition is clear, then आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे diffusion कैसे हो. Definition says that the movement of a substance from higher concentration to the lower concentration when the two solutions are mixed when the two solutions are separated by a membrane. जब भी हम दो solutions को separate करेंगे membrane से, तो उनमें जो higher concentration वाला solution है, उसके जो solute के particles होंगे वो किधर move कर जाएंगे, lower concentration वाले solute particles में. तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे higher concentration है और यहाँ पे क्या है हमारे पास, lower concentration. This is higher concentration, this is lower concentration. ठीक है. अगर इसकी concentration higher है, that means यहाँ पे solute के particles ज्यादा होंगे, तो solute के particles will move from this side to this side. तो यहाँ पे जो solute के particles हैं वो क्या करना start कर देंगे, move करना start कर देंगे. Solute particles will move from the higher concentration to the lower concentration. और कब तक मूव करेंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स, जब तक हमारे पास जो दोनों सॉल्यूशंस हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी.
जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी हमारे पास, एट दैट टाइम हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बट डिफ्यूजन प्रोसेस इज वेरी स्लो, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, स्लो एंड स्लो, स्लो एंड स्लो। जो आपकी सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे टुवर्ड्स सॉल्यूशन 2 until and unless the solution 1 and solution 2 the concentrations are not equal। जब तक दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगी तब तक हमारे पास जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन 1 से किस तरफ मूव करेंगे, सॉल्यूशन 2 की तरफ मूव करते रहेंगे। तो ये तो था प्रोसेस आपका, दैट इज योर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो आपको समझ में लग गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस वन, दैट इज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है हमारे पास, प्लीज इसको ध्यान से समझना। ऑस्मोसिस क्या होगा, दिस इज योर सॉल्यूशन 1, ठीक है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। हम साइड में लिखते हैं दिस इज डिफ्यूजन। अभी ऑस्मोसिस के लिए भी क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक वन बीकर, ठीक है। इन दैट बीकर अगेन देयर इज अ सेपरेशन बाय अ मेम्ब्रेन इन बिटवीन द टू सॉल्यूशंस। एक ये सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये है। यहां पे सॉल्यूशन 1 हैज मोर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू सॉल्यूशन 2, ठीक है। यहां पे भी सेम है, दिस इज सॉल्यूशन 1, दिस इज सॉल्यूशन 2, ठीक। सॉल्यूशन 1 विल हैव मोर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू सॉल्यूशन 2। ध्यान से समझना इस चीज को, दैट सॉल्यूशन 1 विल हैव मोर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू सॉल्यूशन 2। दैट मींस सॉल्यूशन 1 के पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, डिसॉल्व सॉल्यूट सॉल्यूशन 2 में क्या होगा, कम होगा। तो अभी हमारे पास यहां पे है कि दैट ये जो हमारे पास यहां पे सॉल्यूशन 2 है और ये सॉल्यूशन 1 है, बीच में इनके क्या हमने लगा रखा है यहां पे, दिस इज कॉल्ड SPM। SPM मींस सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट अलाउज ओनली द सिलेक्टिव पार्टिकल्स टू मूव हियर एंड देयर। मतलब यहां से यहां पे और यहां से यहां पे सिर्फ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को क्या करेगी, अलाउ करेगी मूव करना, आइदर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड और फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और किसकी कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास कम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और कौन अलाउ करेगा, SPM अलाउ करेगा। SPM मींस selective permeable membrane will allow only। Now just focus here and see clearly that आपको जो है यहाँ पे osmosis process जो है वो समझ आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, that हमारे पास एक बीकर था, solution 1, solution 2, इनको सेपरेट कर रखा है SPM, selective permeable membrane। मतलब क्या हुआ, जो सिर्फ selective particles को मूव करना अलाउ करते हैं, either from solution 1 to 2 or 2 to 1, depend upon the concentration। concentration के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ पे कि हमारे ये पार्टिकल्स इधर से इधर जाएंगे या यही वाले इधर से इधर आएंगे, कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स इधर जाना चाहेंगे ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस कि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिर्फ सिलेक्टिव पार्टिकल्स की मूवमेंट अलाउ करेगी। तो मतलब इसमें हमारे पास जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं इधर से इधर नहीं जाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू मूव फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। ये है सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो कि बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, बिकॉज SPM डू नॉट अलाउ, क्योंकि इसके जो पोर्स होंगे इतने छोटे छोटे होते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स उनको क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर होगा क्या यहाँ पे, देन व्हाट विल हैपन, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होंगे तो क्लियरली लिख देते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर को मूव करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट विल बी गोइंग टू मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। जब तक दोनों सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है इक्वल ना हो जाए तब तक ये क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। And this process, the movement in which there is the solvent move from this side to this side, is called osmosis। इसको क्या बोलेंगे हम, osmosis बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने दो प्रोसेस किए,
पहला कौन सा गया हमारे पास, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या था कि दैट हमारे जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं। कौन से पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स। किसके थ्रू मूव करेंगे, मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेंगे। ठीक है, अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स इधर मूव कर रहे हैं तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो इधर मूव कर जाएगा। मतलब दोनों प्रोसेस जब तक क्या नहीं होते, दोनों की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। ठीक है, यहां पे क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट एबल टू मूव, ये मूव नहीं करेंगे। सिर्फ कौन मूव करेगा, हमारा सॉल्वेंट, बिकॉज इनके बीच में एसपीएम। एसपीएम इज व्हाट, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सिर्फ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को मूव करना अलाउ करती है। इसका साइज इतना छोटा है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स बीच में क्रॉस नहीं करेंगे। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि क्या करेंगे, एसपीएम को क्रॉस करके इस साइड पे आ जाएंगे। तो अगर ये पार्टिकल इस साइड पे आ चुके हैं हमारे पास, दैट मींस कौन सा प्रोसेस हो चुका है हमारे पास, ऑस्मोसिस। तो यहां पे हम ऑस्मोसिस की क्या डेफिनेशन बनाए कि दैट हमारे पास जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो इधर से इधर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो डेफिनेशन देखिए, दैट इज ऑफ ऑस्मोसिस, the movement of solvent molecules, the movement of solvent molecules from their higher concentration, from their higher concentration to their लोअर कंसंट्रेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मूवमेंट होगी, किस चीज की मूवमेंट होगी, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट मूव करेगा, कहां से कहां पे मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन। किसकी हायर कंसंट्रेशन, उसकी खुद की हायर कंसंट्रेशन। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑस्मोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। प्लीज यहां पे देखिए, इसको कंपेयर कीजिए। ये जो था सॉल्यूशन C1, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी सॉल्यूशन C2 कंसंट्रेशन। मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है हमारे पास, C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, C2 की कंसंट्रेशन कम है हमारे पास। अगर C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा तो मतलब इसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू C2। अगर सॉल्यूट इसमें ज्यादा है तो इसके अंदर कौन सी चीज कम होगी, सॉल्वेंट कम होगी। इसके अंदर सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास, ज्यादा होगा। C2 में सॉल्वेंट ज्यादा, C1 में सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डेफिनेशन पे आ जाओ, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। एक और डेफिनेशन भी बन सकती है इस चीज की, दैट इज the movement of solvent, the movement of solvent molecules, the movement of solvent molecule, यहां तक तो सेम है, बट यहाँ फ्रॉम देयर हायर। अब यहां पे सॉल्वेंट की बात नहीं करेंगे, अब हम सॉल्यूट की, पूरे सॉल्यूशन की बात करेंगे। द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, lower concentration of solution to higher concentration of solution। इसको ध्यान समझना होगा, इस चीज को ध्यान समझ लो, इस सेकंड डेफिनेशन को। इसमें क्या बोला गया कि दैट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किसकी कम थी हमारे पास, C2 की कम थी। वही बात कर रहे हैं ना, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन, मतलब C2 से C1 की तरफ मूव करेगा। सो दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ दैट प्रोसेस, दैट इज योर ऑस्मोसिस। तो आपको दोनों प्रोसेस यहां पे क्लियर होंगे कि हमारे पास डिफ्यूजन क्या है और साथ में हमारे पास ऑस्मोसिस क्या है। So my dear students, please note down the concept on your notebooks. Now move toward the next. Osmosis and diffusion, I think clear to everyone
कि ऑस्मोसिस क्या होगा, हमारे पास डिफ्यूजन क्या होगा। तो ऑस्मोसिस, इफ द ऑस्मोसिस इज क्लियर, दैट टोटली रिलेट्स विद द ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ वी विल गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को यूज करके ऑस्मोटिक प्रेशर तक चलेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर two boxes and both are joined with each other but separated by SPM। हमने यहाँ पे दो बॉक्सेस कंसीडर कर लेने, ये मैंने यहाँ पे दो बॉक्सेस ले लिए, ठीक है। दोनों बॉक्सेस को हमने सेपरेट कर रखा है यहाँ पे SPM। SPM मींस सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होगी हमारे पास, एनिमल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन की बनी होती है। और जो हमारे पास है सेलफोन की बनी होती है, सेलफोन, ये दो सब्सटेंसेस हैं। सेलोफेन बोलते हैं इसको, सेलोफेन की बनी होगी या फिर एनिमल मेम्ब्रेन SPM2, एंड इट अलाउज द selective material to pass through them, तभी इसका नेम क्या है हमारे पास, selective permeable membrane, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास सॉल्यूशन है, प्लीज माइंड माय वर्ड्स, मैंने क्या बोला, यहां पे सॉल्यूशन है और इसमें सॉल्वेंट, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये प्योर फॉर्म सॉल्वेंट की, और यहां पे सॉल्वेंट में मैंने क्या ऐड कर रखा है, सॉल्यूट, मतलब दो चीजें यहां पे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहां पे सॉल्वेंट नहीं है, इसमें सॉल्वेंट नहीं है। तो अगर यहां पे हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को अप्लाई करें, ऑस्मोसिस, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था पहले कि ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, देयर लोअर कंसंट्रेशन। यहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है और यहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, लो। तो पार्टिकल्स यहां से यहां मूव करेंगे हमारे पास, तो यहां पे बोलेंगे कि द पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ठीक है। सॉल्वेंट यहां से इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये सॉल्वेंट के क्या मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अगर मैंने इन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को रोकना है यहीं पे कि दैट यू आर नॉट अलाउड टू मूव टुवर्ड दिस साइड, क्या तुम लोग यहां पे इस साइड आने, तुम्हारा आना यहां पे अलाउड नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस साइड पे कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। जो प्रेशर मैं अप्लाई करूंगा यहां पे, वो इन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके इनको वापस भेज देगा। या फिर ये हो सकता है कि मैंने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वहीं पे रुक गए, ना वो आगे मूव कर सकते हैं ना वो पीछे मूव कर सकते हैं। बात को समझिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। और क्या है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहां पे हाई कंसंट्रेशन है, यहां पे लो। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बोल रही है कि सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, अपनी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की, नॉट सॉल्यूशन की, मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। तो जैसे सॉल्वेंट यहां से यहां पे मूव कर रहा है, मैं बोल रहा हूं कि सॉल्वेंट यहां से यहां पे मूव नहीं करना चाहिए, तो मुझे यहां पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा सो दैट सॉल्वेंट मूव ना करे आपका इधर, मैंने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, इस बॉक्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, और जो मैं इस बॉक्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा ना, यहां पे देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे थोड़ी सी ओपनिंग कर देते हैं, इधर स्मॉल ओपनिंग विल बी देयर, और इधर भी हमें करनी पड़ेगी फिर से। तो यहां पे क्या होगा, इसके ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसके ऊपर भी कौन सा प्रेशर अप्लाई होगा, यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तब आपके सॉल्वेंट्स इधर से इधर मूव कर रहे थे। अब मैंने आपको क्या बोला है कि हमें इतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऊपर कि आपके जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं यहां से यहां ना मूव करें। तो अगर मैं इसके ऊपर वो प्रेशर अप्लाई कर दूं विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, मैंने यहां पे एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन ने क्या कर दिया, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है, सो दैट जो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, मैंने क्या बोला, इतना प्रेशर लगाना कि मूव ना करें। कौन सी डायरेक्शन में,
नाइदर फॉरवर्ड नाइदर बैकवर्ड। जब मैंने इतना प्रेशर लगा दिया कि पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, इस प्रेशर को हम पिस्टन के लगाए हुए प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इसको बच्चा ध्यान समझ लो कि हमने इतना प्रेशर अप्लाई करना है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से उधर मूव क्या ना ही करें, बिल्कुल ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की हमें डेफिनेशन क्या हो रहेगी? डेफिनेशन देखो, द नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, the net movement of the solvent molecules from the net movement of the solvent molecules from solvent to solution, the net movement of the solvent molecules, नेट मूवमेंट किस चीज की नेट मूवमेंट हो रही है हमारे पास? सॉल्वेंट की। किसकी तरफ हो रही है हमारे पास? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, बाय अप्लाइंग सेम प्रेशर ओवर सॉल्यूशन is called, क्या बोलेंगे इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको ध्यान समझ लो कि हमने इतना प्रेशर अप्लाई करना है इसके ऊपर सो दैट आपके जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इधर से इधर ना मूव करें। जब मैंने इसके ऊपर पिस्टन के साथ क्या अप्लाई कर दिया? प्रेशर अप्लाई कर दिया। इसको कौन सा प्रेशर बोलेंगे? दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां पे जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको हम एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। पाई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे मतलब यहां पे हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। इधर तो कुछ भी अप्लाई नहीं किया। तो हमारे पास यहाँ पे जो पाई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? दैट इज द मोलैरिटी। एम क्या है हमारे पास? मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां पे जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। और अभी आपको पता लग गया होगा कि जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। जो चीज नंबर ऑफ मोल्स इस चीज के सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है उसे हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट मींस जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगा आपकी? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मतलब आपका जो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एम क्या? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो नेक्स्ट है जो पाई है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एक तो हो गया हमारे पास m, दूसरा क्या हो गया? t। अगर इन दोनों को कंपेयर कर दें इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m into t, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसको कैपिटल डी लें, टेंपरेचर आ जाएगा कैपिटल टी, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें, यहां पे कांस्टेंट रिड्यूस कर दे दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m t हो जाएगा। और यहां पे ये जो है r क्या है हमारे पास? दिस इज योर अगेन गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विद मोलैरिटी एंड टेम्परेचर। प्लीज नोट डाउन द होल टॉपिक and remember one thing more, that value of r here is equal to 0.0821 atmosphere liters mole, atmosphere liter per mole kg, तो kg नहीं आएगा, per mole Kelvin, atmosphere liters per mole Kelvin। कर दो इसको मतलब इसे। I think you have noted
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज योर रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी की बेसिस के ऊपर है वो भी। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ, पानी पीते हो ना आप लोग आरओ वाला जो आपके घर में लगा होता है आरओ फिल्टर, ठीक है, फिल्टरेट वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के साथ कई लोगों के घर में लगा होगा, माइट बी सम डू नॉट हैव, सिंपल फिल्टर भी होगा कई लोगों के घर में। तो जहां पे हमारे पास आरओ लगा होता है तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि वहां पे ये जो आरओ वाला प्रोसेस है कैसे प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। आरओ वाला प्रोसेस जो है वो कैसे प्रोसीड करेगा, तो उसके लिए इसको ध्यान से समझने की जरूरत है बच्चा आपको, इस टॉपिक को। आरओ कैसे हमारे पास जो है वो प्रोसीड कर रहा है आपका। सो आप लोगों ने 2 बॉक्सेस ले लिए, एक में क्या है हमारे पास सॉल्वेंट, एक में क्या है आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो कौन सा वाटर है, लेट अस से सॉल्ट वाटर। आप लोग घर पे भी कर सकते हो इसको। 2 बॉक्सेस एसपीएम लगाओ, इधर सॉल्ट वाटर ले लो, इधर आपके पास क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोटिक नहीं है, ऑस्मोसिस नहीं होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहां पे वाटर है हमारे पास, यहां पे सॉल्ट वाटर है, जैसे आपने एसपीएम लगाया यहां पे, इधर भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पे, पहले तो होगा यहाँ पे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होगा, सॉल्वेंट इधर से इधर मूव करेगा, यही होता है ना, सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, खुद की हाई कंसंट्रेशन और इसकी अपनी ही जो है खुद की क्या हो जाएगी लोअर कंसंट्रेशन, इसकी अपनी हायर कंसंट्रेशन, इसकी अपनी क्या हो जाएगी लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगी। जब इसकी अपनी हायर कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है तो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ऑस्मोसिस में। लेकिन रिवर्स वर्ड आ गया, रिवर्स, रिवर्स मींस उल्टा हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पूरा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल टर्न कर जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये जो P प्लस पहले हमने पाई लगाया था ना यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब मुझे यहाँ पे प्रेशर, ये पाई क्या था, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आपको रिवर्स ऑस्मोसिस करना है यहाँ पे प्रोसेस, द प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जो आपका प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब यहां पे अगर आपने पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, ये जो पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, आपका जो प्रेशर होना चाहिए ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेगा और आपका जो सॉल्वेंट है वो कहां से कहां पे मूव करेगा, वो मूव करेगा अपनी ही लो कंसंट्रेशन से अपनी हाई कंसंट्रेशन की तरफ। यहां पे मैंने क्या ले लिया, सॉल्ट वाटर ले लिया, मतलब इसमें हमारे पास जो है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट इज वाटर, और सॉल्यूट कौन है हमारे पास, यहाँ पे सॉल्यूट इज व्हाट, सॉल्ट। मतलब यहाँ पे इसकी लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे वाटर है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, हाई कंसंट्रेशन। जैसे आपने प्रेशर अप्लाई किया, जो आपका पानी है वो लो कंसंट्रेशन से किसकी तरफ मूव कर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन। जब ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, आपके जो सॉल्ट वाटर के अंदर वाटर, वाटर सिर्फ सॉल्वेंट जो है वो क्या कर जाएगा, इस साइड पे मूव कर जाएगा, पीछे सॉल्ट रह जाएगा। और अगर यहाँ पे सॉल्ट रहेगा, आपका जो वाटर है वो रिमूव हो गया हमारे पास, मतलब हमने सॉल्ट वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट कर दिया, वाटर को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया हमने, प्रोसेस अप्लाइड हियर इज रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से सी वाटर को भी हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, देन आफ्टर दैट वी विल
we are going to start the numerical part of this topic. इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. Now on to the next numericals related to the osmotic pressure. The first numerical that we are having, note down the statement first. Calculate the mass of solute added to the 500 ml of solution if the osmotic pressure of the solution is 76 atmosphere and molar mass is 500 and molar mass is equal to 36 grams per mole of solute at 273 Kelvin. Now you have to solve this. Simple सा क्वेश्चन. आपने क्या फाइंड किया करना है? सॉल्यूट का मास फाइंड करना है. जो आपने 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या किया है? ऐड किया. ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन दिया हुआ कितना? 76. मोलर मास नॉन वॉल्ड जो सॉल्यूट है उसका दिया हुआ 36. टेंपरेचर कितना हमारे पास? 273. तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे. pi is equal to r m t. ठीक है. r is गैस कांस्टेंट, पहले आपको बताई थी 0.0821. ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो m है, m क्या हमारे पास? दैट इज योर मोलैरिटी. फॉर्मूला क्या मोलैरिटी का? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर. ये मोलैरिटी है हमारे पास. t क्या है हमारे पास? टेंपरेचर ऑलरेडी गिवन 273 केल्विन. तो मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी. पहले हमें m निकालना पड़ेगा. मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स. मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के हैं. डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसका? हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स n निकालना पड़ेगा स्मॉल m बाय कैपिटल M, दैट इज Bl. स्मॉल m गिवन मास कितना है हमारे पास? कैलकुलेट, ये फाइंड करना है. स्मॉल m हमें कैलकुलेट करना है. मास ऑफ सॉल्यूट जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया, वी हैव टू कैलकुलेट. तो यहाँ पे मोलैरिटी किसके इक्वल आ जाएगी? स्मॉल m कितना हमारे पास? 36. वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 500 ml. तो वॉल्यूम हमारे पास 500 ml है. इसको लीटर्स में चेंज करो. डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 1000. दैट विल बी इन लीटर्स. कितना आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम? हाफ लीटर आ जाएगा. तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को कितना पुट कर देते हैं? हाफ. दैट 2 विल बी इन न्यूमरेटर, दैट इज m by 36 into 2 कितना आ गया हमारे पास? m by 18. दिस इज योर मोलैरिटी, m by 18. नाउ पुट द वैल्यूज हियर. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ pi? 76. r 0.0821, m small m by 18, and we have to calculate m. Temperature 273. Now we have to calculate small m. 76 into 18 divides by 0.0821 into 723. Now after calculating the value will be calculate कर लेना. इसको multiply करके divide करना. 61.04 grams is the answer. ये हमारे पास क्या आ चुका है? This is your mass of solute. सिंपल क्वेश्चन. पहले हमारे पास ये फॉर्मूला लगाया, हमने m को कैलकुलेट कर लिया, p गिवन था, r पता है हमें, वैल्यू फिक्स है, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, पाई हमें गिवन था, वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया 61.04 ग्राम्स. जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल related to the formula.
The next numerical, second numerical, is a very simple numerical. Calculate osmotic pressure. अभी आपको osmotic मतलब पाई कैलकुलेट करना है. Due to 10% by volume of glucose C6H12O6 in the formula लिख दिया at 20 डिग्री सेल्सियस. जल्दी से इसको सॉल्व करना प्लीज. हरी डू इट फास्ट. तो इसको सॉल्व. ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पाई इज इक्वल टू आर एम टी. आर गिवन फिक्स 0.0821. टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस. जस्ट कन्वर्टेड टू केल्विन 273 प्लस कर दो. कितना आ रहा है? 293 केल्विन. टेम्परेचर. आफ्टर दैट हमारे पास क्या है? मोलैरिटी. वी हैव टू गो फॉर दैट मोलैरिटी. मोलैरिटी कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो हमें यहां पे गिवन है. क्या गिवन है? 10% बाय वॉल्यूम. व्हाट डज इट मींस? स्मॉल m हमारे पास 10 ग्राम. 10% मींस 10 ग्राम. और हमारे पास कैपिटल M कितना हो जाएगा? ग्लूकोज है. ग्लूकोज का मास कितना होता है? दैट इज 180. अब हमारे पास यहाँ पे कितने में डिसॉल्व है? वॉल्यूम कितना? 100 ml. ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. डू वन थिंग, इसको लीटर्स में कन्वर्ट करो. डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा. इसके साथ कैंसिल 1/10. ये आ गया वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल m बाय कैपिटल M. 10 बाय 180 कैंसिल. नाउ पुट द वैल्यू इन मोलैरिटी. n आपने कैलकुलेट कर लिया. कितना आया आपका? 1/18. वॉल्यूम कितना आया आपका? 1/10. मोलैरिटी कितनी आ गई? 10/18 मोल पर लीटर. दिस इज मोलैरिटी. Now what we have to go for the value of pi. Pi कितना हो जाएगा? R is 0.0821 and कितना? 10/18. टेम्परेचर कितना हमारे पास? 20, 22, 293. Now please solve it. Solve the value for pi. Pi कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास? करो उसको सॉल्व जल्दी से. After solving, your value will be 30.36 atmosphere. ये आपके पाई का आंसर आ जाएगा. कितना सिंपल है वेरी सिंपल. जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी थी. आर की, एम की और टी. आर बताइए आपको. एम कैलकुलेट करिए मोलैरिटी. टेम्परेचर गिवन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस. Now the next, we are having three types of solutions. Solution 1 is isotonic solution. Two more types are there. इसके बाद दो और types हैं, उसकी बात करेंगे. ठीक है. ये कौन सा solution? Isotonic solutions कौन से solutions हैं? The solutions having same concentrations, जिनकी concentration same होती है हमारे पास. concentration same है हमारे पास, that means उनका जो osmotic pressure होगा वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास? same हो जाएगा. osmotic pressure. That is solution A and solution B. दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे पास क्या हो गया? सेम हो गया. एट कंडीशन है साथ में. ये कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है. एट सेम टेम्परेचर.
क्योंकि टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई ए, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, दैट इज योर फॉर्मूला क्या था, आर देन एम इनटू टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एम बी इनटू टी, टेम्परेचर सेम कैंसिल, आर वैल्यू सेम है हमारे पास, मोलैरिटी क्या हो जाएगी फिर इनकी इक्वल हो जाएगी, दोनों की मोलैरिटी क्या कर सकते हैं हम, इक्वेट कर सकते हैं। दैट इज कौन सी कंडीशंस के ऊपर, सेम टेम्परेचर। कौन से सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, ठीक है। लेट अस सपोज मेरे पास सॉल्यूशन ए है, मैंने बोला सॉल्यूशन ए इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन ए इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मींस हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, लो हो जाएगा हमारे पास। सॉल्यूशन ए इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन as compared to solution B. Then what does it means? जो पाई A है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा पाई B की कंपैरिजन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन A जो है हमारे पास क्या है, हाइपोटोनिक, ठीक है। और सॉल्यूशन B जो है किसकी कंपैरिजन में, सॉल्यूशन B की। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, दूसरे सॉल्यूशन के क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली सॉल्यूशन 3, थर्ड टाइप, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है, इसके लिए भी मैंने एग्जांपल लिया। लेट अस से आई एम सेइंग सॉल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी के कंपैरिजन में। तो मतलब आपका जो सॉल्यूशन ए है वो हाइपरटोनिक है। हाइपर मींस हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसका मीनिंग यही हुआ कि जो आपका सॉल्यूशन बी है, सॉल्यूशन ए है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे पास सॉल्यूशन बी के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाइपो में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आइसो में क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों का सेम हो जाएगा। सो दीज आर द थ्री टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड। नाउ द qualitative property of the osmotic pressure is completed, and I hope that what I have teach you is clear to each and every students. Thank you.